وما بلکہ کوئی زبان، یہاں پر آسامی زبان ہے، منی پور کی زبان بھی بولتے ہیں، بنگالی لینگویج بھی بولتے ہیں، باضابطہ پرٹیکولر لینگویج، اتنی بڑی لینگویج ہے یہ بنگالی لینگویج کہ بھارت کے کسی بھی اتنے بڑے حصے میں نہیں بولا جاتا جتنے بڑے حصے میں بنگلہ لینگویج بولا جاتا۔ آپ کی جھارکھنڈ میں یہ لینگویج بولی جاتی ہے، فرقہ پاپور چلے جائیے، گڈا چلے جائیے، ارے ہمارے سیمانچل چلے جائیے، کشن گنج، پورنیا، کٹیہار، مجاہد بھائی جانتے ہیں بہت بڑے حصے پر بنگلہ لینگویج کا استعمال ہوتا ہے، یہ لینگویج بولی جاتی ہے۔ آسام تو ہے ہی، اور آپ کی تریپورہ میں بھی بولی جاتی ہے، میگھالیہ میں بھی بولی جاتی ہوگی، ان سب ایریا میں بولی جاتی۔ تو قرآن میں کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اب اللہ کو اگر بھیجنا ہوگا کہ بھئی منی پوری زبان میں بھی ایک نبی کی ضرورت ہے، وہاں پر صرف لوگ کھا رہے، مچھی کھا رہے، پکا پکا کے سکھا سکھا کے رکھ دیتے ہیں ایک سال کے جی، اور آسام کے اندر میں مچھی پکڑتے ہیں، اور تو یہاں کوئی بھیجے ہوں گے تو یہاں کی لینگویج میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آئے ہوں گے، تو یہاں کی لینگویج میں انہوں نے سمجھایا ہوگا کلمہ، یہاں کی لینگویج میں۔ میں ہوں کام کا سیمانچل کا، میں بہار کی لینگویج میں کلمہ نہیں بتا سکتا، کیوں؟ یو آر نوٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں نا اس کو، کیوں؟ آپ جس لینگویج میں ہو، ہم تو بھیا کل سے ایک جملہ رٹ رہے ہیں، ابھی تک وہ بھول گئے، آگے بھول ہی گئے، ہم تو بولے نہیں، تو کل سے ابھی تک ہم کو وہ یاد نہیں۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ ہی کی لینگویج کا نبی اور پروفیٹ کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ یقین کے ساتھ بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی زبان اگر اس وقت رہی ہوگی تو آپ کی زبان میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے کما برنا دکھتی ناستے نہیں ناستے کنچنے کمے بمدویتم، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیو، آپ ہمارے نبی پر، ہمارے رسول پر کیچڑ اچھالتے ہو، بلکہ آپ کے دھرم میں بھی نبی اور رسول آئے۔ میں نے ابھی جو پڑھا ہے شروع کے اندر مہدادیت پر ہم نے آیتیں پڑھی ہے، اور پھر نبی کے اوپر ہم نے آیت پڑھی، ہمیں احادیث بھی وحدانیت کے تعلق سے شرک کی مخالفت میں پڑھی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبوت کا وہ بھی پیغام ہم نے آپ لوگوں کو سامنے رکھا۔ میں دونوں کا ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو، تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ جو آج یہ لوگ شریعت سے، قرآن سے ایک ایک حکم کے اوپر جو انگلی اٹھا دیتے ہیں نا، نہیں جی یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں چلنے دیں گے، وہ یوں بھی بولا کہ بھارت کے اندر ہم یہ کلچر نہیں چلنے دیں گے۔ کلچر تو دور کی بات، یہ کلچر نہیں ہے، اور یہ سارے بھارتیوں کا کلچر نہیں ہے، یہ صرف جو کلمہ پڑھنے والے ہمارے مومن اور مومنہ ہیں حجاب کے تعلق سے، یہ کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ آرڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آرڈر ہے یہ آرڈر، اور کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، نہ آپ کے فیملی کے لیے۔ آپ عمل کرو تو ٹھیک، نہ عمل کرو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جو آپ بولے ہو نا ہم لاگو نہیں ہونے دیں گے، ہم کا کیا مطلب جی؟ تمہارے نانا کا ہے یہ دیش، تمہارے نانا جس سے تم منسلک ہونا وہ تمہارے نانا 1925 میں رجسٹرڈ ہوئے، اس سے پہلے 1857 کی جنگ کنفرٹی میں کن کی گولی لگی تھی؟ مولانا قاسم نانوتوی کی لگی تھی، 1861 62 63 10,000 مسجدیں، 10,000 مدرسے دلی میں شہید توڑ دیے گئے، اور قرآن کریم کی نسخوں کو مسجدوں کے تار سے نکال کر ان کے بدن کو جلایا گیا۔ 1799 میں کس نے روکا کانگریس کو؟ کس نے روکا؟ دیکھو تاریخ کو طاقت، نام اس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا میں، فتح علی خان ٹیپو سلطان نے رکھا تھا۔ اس سے پہلے آپ کے کلکتہ میں انگریز کا ہیڈ کوارٹر بنا، تو اس ہیڈ کوارٹر کو گولے سے توڑ دیا، اس کا نام کیا تھا؟ نہیں، ان کے نانا علی وردی خان نے ہیڈ کوارٹر کو توڑا۔ 1700 کب کی بات ہے؟ 55 کی بات ہے۔ 1757 میں
नवाब सिराजुद्दौला ने वो पुरासी की जंग ये मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों से मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला बाज़ाब्ता शुरू किया तो नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे ये लोग? कलिमा पढ़ने वाले थे। तुम कहाँ गए थे गुरुजी? तुम्हारे ना अब्बा का, न तुम्हारे दादा का, न तुम्हारे परदादा का, न तुम्हारे लकड़दादा का, न तुम्हारे सकरदादा का, किसी का वजूद भी नहीं था। अपने देश के आगू को बचाने के लिए अगर कोई था तो यही मुसलमान थे, यही टोपी और दाढ़ी वाले थे। बुराइयों के खात्मे के लिए हर मैदान में कौन आगे? उलमा आगे। आपका दारुल बसकंदी इस बात की दलील है, जो बुराइयां फैल रही थी। हजरत मौलाना ने बताया अभी कि हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की की उनकी चॉइस और हाजी मोहम्मद अकबर साहब मरहूम बाणी बुनियाद रखा तो आपके इस इलाके के अंदर में खूबसूरत अखलाक के मालिक आप लोग हैं। हर महीने के अंदर में जो वहां पर तज़किए नफ्स के लिए जो इस्लाही और जो वो मजलिस मुनाकिब की जाती है, इन्हीं अकाबिर की मेहनत का नतीजा है। आज का खूबसूरत में गया हूँ, आज उस इदारे को देखने के लिए हजरत मुफ्ती मोहम्मद हामिद साहब ने दिखाया। तकरीबन इतने पीका में ये इदारा, हमने कहा कि तो जंगल में मंगल है। हम तो नाम सुनते थे कि हाँ दारुल बसकंदी है, छोटा मोटा इदारा होगा, बाकी पुराना होगा, लेकिन आज अंदर गए तो मेरा निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ये इदारा आया तो क्रिश्चियनिटीज का जोर कम हुआ, वाकई नहीं हुआ कम, बताइए। वरना आज आपका इलाका पूरा क्रिश्चियन हो जाते। हमारे क्रिश्चियन भाइयों, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपने एक अल्लाह को छोड़कर, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का नबी छोड़कर कुछ और मानते हैं तो यकीनन मैं कहूंगा कि यू आर गोइंग टू द रॉन्ग वे। आप गलत जा रहे हैं, आप अपने ग्रंथ के खिलाफ जा रहे हैं। आपके ग्रंथ में बात लिखी गई नहीं। You have to choose only one God. You have to follow only one prophet. Because Isa अलैहिस्सलातु वस्सलाम said, उन्होंने क्लियर करके कहा है कि मेरे बाद जो नबी आएगा, you must to follow that person. उस आदमी की इत्तिबा करना, उस आदमी को मानना, उसको नबी मानना। आपके ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने, आपके मजहब के कुछ गुरुओं ने अपनी जाती फायदे के लिए पूरी तरह वहां से निकाल दिया। ये उलमा है, ये टोपी दाढ़ी वाले, इनको हल्के में मत कीजिए। लाल मुजफ्फर साहब माथे में तिलक लगाकर आप कोई ईश्वर का प्रिय मित्र नहीं बन जाओगे। जाफरानी रंग ईश्वर को पसंद है, मैं मानता हूं, लेकिन वो जाफरानी रंग अगर किसी बेटी की इज्जत या किसी समाज को दुखाकर आप अपने माथे में लगाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी सुख शांति आपको नहीं मिल सकती। कैसे लगाते हैं? पट्टी लगाते हैं हमारे को हिंदू भाई, क्यों लगाते हैं? वो डुप्लीकेट लगाते हैं। असल में मेरे माथे में देखिए 3 लकीरें देखिए है, अब दिख रहा है, बिना ऐसे किए भी 3 लकीरें। हिंदू भाइयों का एक अकीदा, एक कॉन्सेप्ट है कि 50,000 इंसानों में एक इंसान ऐसा पैदा होता है जिस पर शिव जी का अंग है। जितने भी साधु संत हैं वो अपने आप को कहते हैं कि मेरे अंदर शिव जी का अंग है। वो डुप्लीकेट वो निशान लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर कुमकुमे लगा लेते हैं, चूना लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, ऐसे अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं शिव जी, मैं शिव जी। थोड़ा सा जोर से चीखो तो भागेंगे ऐसे कि जैसे कि सीख लाए। हाँ, जैसे वो रामलीला के मैदान में भाग लेते हैं, वो हरिद्वार वाले पतंजलि वाले बाबा जी कहाँ गए आपके? वो शिव जी के वो थे जो बातों के सामने खड़े हो जाते। शिव जी उनको बोलते हैं, ताकत का नाम शिव जी है हिस्ट्री इतिहास के अंदर। अगर आप वाकई शिव जी का नाम लेते, माथे में लगा लेते हैं, तो शिव जी की सिफत भी पैदा करो, उस दिन मत करो। नहीं जनाब, बस सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए लोग करते हैं जनाब, बोल देते हैं जो मन में आता है बोल देते हैं। इसके ऊपर अगर आपको शक है, आपको लगता है ये इंडियन कल्चर है, हमारे समाज की बेटियां, और आप कहते हो कि हमारे भारत में ये हम नहीं होने देंगे, तुम्हारे अब्बा दादा का नहीं है, कौन से स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ, तुम्हारे अब्बा और बाबा का है,
दिखाओ तुम भारत के अंदर तुम्हारा क्या प्रूफ है, तुम यहाँ के, तुम ईरान के हो, आर्यन कौम हो तुम, वहां से तुम आए, हम यहाँ के हैं। इसलिए हम यहाँ के हैं कि यहाँ पर रहकर हमने सारे धर्म के लोगों को आगे किया, हमने सारे धर्म को सुख शांति दी। 800 साल तक हुकूमत रही, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं हुई। जिस वक्त हम थे उस वक्त इस देश की जीडीपी तकरीबन 27 से 28% थी। आज जो हम भारतीय स्टेट बैंक चलाते हैं, इस बैंक का पानी कौन? इतिहास की बातें बता देता हूँ, पूछो उस बेलगाम घोड़े से, आसाम के अंदर फुदक फुदक कर उल्टी सीधी बातें करते। भारतीय स्टेट बैंक का असल नाम भारतीय स्टेट बैंक नहीं, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इस स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का बानी का नाम मीर उस्मान अली। 1961 में जब चाइना से मुकाबला हो रहा था, देश के पास माल मटेरियल नहीं थे हमारे चाइना से मुकाबला करने के लिए, कहां जाएं, किधर जाएं, क्या करें? तो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर साहब था लाल बहादुर शास्त्री जी, कहां गए थे? पूछो लाल बुजक्कर से। माथे पे टीका लगाने से नहीं चलेगा। भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में कुछ ऐसा करो कि लाल नजर आए, उसको काला मत करो। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली से सफर करते हैं, हैदराबाद जाते, मीर उस्मान को कहते हैं कि मीर उस्मान जरा मुझे बताओ कैसे हम भारत का मुकाबला चाइना से करें। चाइना कब्जा करने वाला है हमारे इस देश में। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब? उन्होंने कहा कि दान चाहिए। कहा कि दान लीजिए, अपने आप गाड़ी मंगाइए। 500 टन सोना दिया मीर उस्मान अली, तब जाकर चाइना से मुकाबला हुआ और चाइना के दांत हमने खट्टे किए। कौन था मीर उस्मान अली? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा जी। हमारा भारत तुम्हारे परनाना का भारत। नाम का बोलने से नहीं चलता, हम बोलते नहीं, हमारे अकाबे अगर नहीं बोलते हैं इतिहास के ज्यादा, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम पीकी बिल्ली की तरह जड़ जाओगे, होमो करते हुए जड़ जाओगे। हम मजबूर हो जाते हैं कभी कभी इतिहास की बातों को करने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज जो इस्लाम, आज जो जीएसटी, आज जो टैक्स का जो निजाम है, जीएसटी वाला नहीं, पहले वाला जो टैक्स था, जीएसटी वाला तो ये तो उद्योगपतियों की तरफ से है। पहले वाला जो टैक्स करता था, इस टैक्स का निजाम किसने लागू किया? शेर शाह सूरी ने। आपके अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक भारत का सबसे लंबा चौड़ा सड़क का निर्माण किसने किया? शेर शाह सूरी ने किया। सराय बनाए, बस स्टॉप किनके बनाए? शेर शाह सूरी के बनाए। नोट के ऊपर जो मोहर है किनके बनाए हुए? ये तरीका बाद में आजादी के बाद भी इसकी मॉडिफाई हुआ। ये तरीका राय किया हुआ था पाकिस्तान नफरत का। सच्ची प्रथा के ऊपर पाबंदी किसने लगाई? पहले एक मर्तबा पाबंदी लगाई थी औरंगजेब बादशाह, बाद में फिर पाबंदी लगाई इन्होंने टीपू सुल्तान ने सतीवत का। सतीवत ये होता है कि नंगे और नंगे हो जाए, किसी का शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो नंगी होकर उसको लाश में, उसको अग्नि में बिठा दिया जाता। सतीवत और बुरी होती, ये चलन एक रिवाज था, उसको खत्म किया। ऐतिहासिक बातों को अगर हम नहीं छेड़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब आपके मन में जो आए आप बोलते चले। हम उन चीजों को करते हैं जिसका हमें परमिशन और इजाजत मिलता है भारत के संविधान में। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमको परमिशन है नमाज पढ़ने की। हम अगर अज़ान देते हैं तो अज़ान देने की परमिशन है हमें। हम अगर रोजा रखते हैं तो रोजा रखने की परमिशन है। हम ज़कात देते हैं तो ज़कात देने की परमिशन है, इजाजत है। और ये गलत नहीं, आपकी किताबों में भी हम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं तो आपकी किताबों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी माना गया। हम अगर अल्लाह को निराकार मानते हैं, यानी अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, हम बिना पत्थर के मूर्ति के उसके सामने अगर झुकते हैं तो ये कुरान का फरमान है। क्या फरमान है कुरान का? लैसा कमिथलिही शै। हम इस पर अमल करते हैं, लेकिन तुम तो जानते नहीं, तुम तो अपने गुरुओं के बोलने पर बोलते हो। पढ़ो किताब पूरी वेद के अंदर है, नतस्य प्रतिमास्ति यस्सनाम अहतसा। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, उसके नाम का जिक्र करना सबसे बड़ी इबादत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी क्या कहा?
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुमको जब घबराहट हो, दिक्कत हो, तो तुम मेरे नाम को जप लिया करो, मेरे नाम का जिक्र कर लिया करो। और सुनो, मुझे तुम किसी पत्थर में, लकड़ी में मत ढूंढना। क्यों? लैसा कमिस्लिही शै, दुनिया की किसी चीज के मुशाबे मैं नहीं हूँ। कौन कहता? कुरान भी कहता है। और तुम्हारे धर्म शास्त्र की बड़ी धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राम उपनिषद और पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, तुम्हें याद भी नहीं होगा कि 18 पुराण है। मैं नाम बता सकता हूँ। उपनिषद के अंदर देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा गया कि जो किताब लेकर जाएंगे उस किताब को मानना। अल्लाहू मैककम अदल्लाहू लिखाकम, वो मुहर है, मुहर जो नबी लेकर आएंगे। और वो नबी जो लेकर आएंगे वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा, उसको मानने की कोशिश करना। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धक्का इल्ले वरुणो मित्रस्ते दस्काम है होता रविंद्रो महासुरिंद्रो। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत होगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज इतनी प्यारी थी कि लोगों का मन करता था कि आप बोलते रहे, हम सुनते रहे। ऐसी ठीक है, कुरान नहीं है महासुरिंद्रो, संस्कृत है, उपनिषद का ये मंत्र है। अस्मल्लाह इल्ले मित्रा वरुणा, दिव्य मित्रा है, वरुण है, बहुत मोहब्बत करने वाला है, अलवदूद है, अलगफूर है। मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्ते जस्सामय होतार इंद्र महासुरिंद्रो। हजरत राणा ने हमको आज ऑर्डर दे दिया है कि ज़्यादा मंत्र पढ़ गया, मंत्र पढ़ के हम तकरीर करेंगे। पढ़ रहे हैं लेकिन पता तो जरूरत हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि पता तो चले कि जो लोग कुरान को, शरीयत को गाली रखते हैं, उनकी किताबों में हमारे नबी का तज़किरा मौजूद, उनके ग्रंथों के अंदर हमारे नमाज का तज़किरा मौजूद, हमारी शरीयत का तज़किरा मौजूद। इसे से जिहालत हमने पहले भी बात कही कि जिस तरीके से हम लोगों में अपने शरीफ बातों को सीधे सिखाने का एहतमाम है, दुनिया के किसी और धर्म के अंदर इसका एहतमाम नहीं है, जिसकी वजह से सारे के सारे धर्म क्या हो गए, वो मग़ज़ूब अलैहिम, वो सब के सब कोई मतलब मुशरिकाना अक़ीदा हो गया। यहीं पर मिसाल के तौर पर हमारे उलमा, बसंदी के उलमा, आस-पास के मदारिस के उलमा मसले की बात, शिर्क व बिदअत, खुराफात की बात मस्जिद के मिंबर पर बैठकर, और ये जैसे तंजीम है तंजुमन उलमाए मणिपुरी वासां, ये खामोश होता है। देखेंगे कि बच्चे गलत कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप, तो 50 साल के बाद बिलाद और खुराफात होगा कि नहीं होगा बताइए? एकदम होगा, 100% होगा। 100 साल के बाद जनाब ये मस्जिद नहीं नजर आएगी, मस्जिद में फिर कौन नजर आएंगे? मुफ्ती इस्माइल साहब का भूत नजर आएगा। क्यों? वो कहिए कि मुफ्ती इस्माइल साहब वो थे जो जिक्र करा करते थे, मौलाना अब्दुल्ला वो थे कि जो बिहार से आकर तकरीर करके सुनाते थे। काफी जितने भी थे, हजरत मौलाना शेखुल हदीस अहमद साहब मरहूम, उनका मजमा बना लेंगे। क्यों? बहुत महान इंसान थे, इसीलिए हम कहीं भूल ना जाए, जो मूर्ति बना देते हैं। ऐसे से मूर्ति पूजा का वजूद हुआ ना, इसीलिए खुशकिस्मत हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए हमारे मदारिस मेरे भाइयों 100 मरतबा हम इनका शुक्रिया अदा करें तो कम है। और मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ और बारीक बारीक बातों को निकाल बताते हैं, किताबों के जरिए से, तकरीर के जरिए से समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि प्लेटफॉर्म से